Now let us come on to asexual reproduction. All right, let us come on to asexual reproduction. So there are various types of asexual reproduction. And we will see all these in a brief, है ना. So the first one is your spore formation. First type of asexual reproduction is your spore formation. ठीक है, spore formation. Now what do you mean by spore formation? अच्छा, पहले मैंने आपको बोला था कि I will tell you about तो मैंने आपको बोला था that I will tell you about various types of cell. So before starting spore formation, let us start with types of cell, है ना. Let us start with types of cell, है ना. So cell is of two types. One is somatic. और भी बहुत तरह के होते हैं, but this is a general classification. Understanding this will help you in gaining concepts. ठीक है, somatic cells and reproductive cells. Somatic cells and reproductive cells. These reproductive cells, they are also called as germ cells. They are also called as germ cells. Now, what is the meaning of this somatic cell? Somatic cell means they don't participate in reproduction. They don't participate in reproduction, है ना. जैसे कि मेरा मान लेते यहाँ मुझे चोट लग गई, है ना. मुझे यहाँ चोट लग गई और चोट लगने के कारण क्या होगा, मेरा सेल्स यहाँ डिवाइड करेगा. लेकिन क्या यहाँ जो सेल, अब अच्छा यहाँ चोट लगने की वजह से यहाँ के जो सेल्स होंगे दे विल डाई. Those cells they die. And how will new cells generate? New cells will generate from the pre-existing cells, है ना. तो pre-existing live cells they will divide and form new cells. And मेरा यहाँ पे जो चोट लगा हुआ गड्ढा है that will be filled up. Now एक बात याद समझो कि these cells, है ना, which regenerated, are they participating in reproduction? क्या ये मेरे रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं? नहीं. These are simply cells which are simply regenerating and they don't have anything to do with reproduction. So such cells which don't have anything to do with reproduction are called as somatic cells. While what are reproductive cells? Reproductive cells are those cells which take part in reproduction. तो अभी हमने एक सेल का नाम पढ़ा, एक सेल के बारे में जिक्र किया, है ना, which is a reproductive cell. What is that cell? That cell is a gamete, है ना. अभी हमने देखा, मैंने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो मैंने आपको बताया that the fusion of male and female gamete, and what are these gametes? These are cells, right? So gametes are a type of reproductive cell, है ना. So ये जो reproductive cell होता है बाबू, now this reproductive cell is also of two types, है ना. This reproductive cell is also of two types. Reproductive cell is also of two types. What are the two types of reproductive cells? First one is which we already know, that is gamete, है ना. This is a gamete. And another one is called as a spore. है ना. Another one is called as a spore. So what is gamete? Gamete takes part in sexual reproduction, है ना. What happens with gamete is that male and female gamete they fuse, है ना. Female and male gamete they fuse, and after fusing they form a zygote, है ना. They form a zygote. And what is this zygote? This zygote is itself a cell. This zygote is itself a new cell, है ना. This zygote is itself a new cell, and this zygote, this new cell will now develop into new organism. है ना.
सो दीज आर गैमेट्स, है ना। तो गैमेट के बारे में हमने क्या देखा, दैट गैमेट्स आर दोज सेल्स विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, एंड आफ्टर फ्यूजिंग मेल and after fusing, है ना, and after fusing male and female gametes form a new cell, and what is that new cell called? That new cell is called as the zygote, and this zygote then develops into a new organism, ठीक है। now what about spore, है ना, what about spore, है ना। spore is that cell which is capable of giving rise to new organism by itself, है ना, which is capable of giving rise to new organism by itself, है ना। गैमेट और स्पोर में डिफरेंस क्या हुआ, गैमेट्स फ्यूज्ड, है ना, गैमेट्स फ्यूज्ड and after fusing they formed a new cell called zygote which developed into a new organism, but this spore, this can itself develop into a new organism. So this is the difference between spore and gamete, ठीक है। now the spore, obviously spore is involved in generally it is involved in asexual reproduction, but sexual reproduction में भी इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे होता है ये जब आप लोग, है ना, प्लांट का लाइफ साइकिल वगैरह, फंजाई का लाइफ साइकिल पढ़ेगा तब आप समझ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जनरली इट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड गैमेट्स आर एसेंशियली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। गैमेट्स आर एसेंशियली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हो गया। सो नाउ दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। now let us come back to our previous slide, that was types of, we were seeing types of reproduction. The first type is spore formation, है ना। now you know what is spore. Spore is a cell which is capable of giving rise to new organism. so there are various of organisms which produce spore, ठीक है। याद रखना spore जो है आपका, this spore generally is formed in unfavorable conditions. This is formed in unfavorable conditions. है ना। फिर मैं एक बात बोल रही हूँ, वापस से स्ट्रेस करूँगी, दिस इज अबाउट जनरली, है ना। जनरली एंड ऑलवेज में हमेशा डिफरेंस याद रखना। नॉर्मली भी फॉर्म होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड इन unfavorable habitats. Now what is the meaning of unfavorable habitats? Unfavorable habitat मतलब कि ऐसा habitat, ऐसा environment which is not suitable for the growth of an organism, which is not suitable for the reproduction of an organism. जैसे मान लेते हैं अमीबा की बात करते हैं ना, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे होता है ना, which can change its shape. आई होप आपको याद है. सो नाउ दिस अमीबा इट कैन डिवाइड इनटू टू. नॉर्मली वो क्या करते हैं, दिस अमीबा फॉर रिप्रोडक्शन इट डिवाइड्स इनटू टू. वन सेल डिवाइड्स इनटू टू. बट क्या होता है, अगर मान लेते ना दिस अमीबा जनरली लिव्स इन वाटर, ठीक है. अब मान लेते किसी रीज़न से सूखा पड़ गया, तो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अमीबा इट कैन नॉट अगर ये सिर्फ बाइनरी फिजन से आपका रिप्रोड्यूस करेगा तो वन सेल विल फॉर्म टू, एंड हो सकता है ये दोनों सेल मर जाए बिकॉज ऑफ सूखा, है ना, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट. सो व्हाट हैपन्स इज दिस सूखा, दिस ड्रॉट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर दैट अमीबा. सो व्हाट हैपन्स इज इन दिस अनफेवरेबल कंडीशन इट विल फॉर्म मेनी स्पोर्स, है ना, इट विल फॉर्म मेनी स्पोर्स. And this many spores and all of these spores they will now develop into new organism, है ना. तो याद रखना स्पोर जब बनता है जनरली एक बार में ढेर सारा बनता है ना. स्पोर जो बनता है जनरली इट इज फॉर्म्ड मेनी इन नंबर, है ना, मेनी या फिर न्यूमरस आप बोल सकते हैं. एक बार में जब बनता है दीज आर फॉर्म्ड मेनी और न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारा बनता है. और जितना स्पोर्स है आपका नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है ना. सो दिस इज अबाउट स्पोर. तो नाउ अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन अमीबा,
है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन अमीबा, है ना। अमीबा में देखिए क्या है, देयर इज अ पेरेंट सेल, मान लेते बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, अनफेवरेबल देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से क्या हो गया, देयर आर मेनी स्पोर्स फॉर्म, देखो कितना सारा इसका जो साइटोप्लाज्म है ढेर सारे सेल्स में बट गया, एंड दीज सेल्स दीज आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू अमीबा। ये सारा का सारा सेल्स है ना, जितना सेल है ये आपका नया सेल बनाएगा, है ना, जितना सेल्स है ये आपका नया सेल बनाएगा। सो ऑल द सेल्स दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। याद रखना, एनी सेल विच इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म इज अ स्पोर, ठीक है, इज अ स्पोर। नाउ दिस पिक्चर हियर इज ऑफ योर फंजाई, है ना। फंजाई में बहुत कॉमनली स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, और भी जगह आप देखेंगे प्लांट किंगडम में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है ढेर सारे जगह पे, धीरे धीरे आप आगे पढ़िएगा सब देखिएगा, बट द मेन एग्जाम्पल हियर इज फंजाई, है ना। फंजाई में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन, अमीबा में कब होता है, अमीबा में जब आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है दिस इज इन अनफेवरेबल कंडीशन, बट जब फंजाई में होता है आपका, फंजाई में नॉर्मली भी आपका स्पोर्स बनता है ना, फंजाई में आपका नॉर्मली भी स्पोर्स बनता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना। देख रहे हो यहाँ पे एक स्पोरांजियम है, व्हाट इज स्पोरांजियम, स्पोरांजियम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्पोरांजियम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें कि आपका स्पोर्स होता है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज स्पोरांजियम। दिस स्पोरांजियम बर्स्ट्स एंड आफ्टर बर्स्टिंग इट रिलीजेस मेनी स्पोर्स, है ना, इट रिलीजेस मेनी स्पोर्स, है ना, देखो बर्स्ट किया, एंड दीज ऑल स्पोर्स दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, है ना, दे आर ऑल केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। With this we complete our spore formation. Now let us move on to the next mode of asexual reproduction, that is your regeneration, that is your budding, है ना, that is your budding. Now what happens in budding? In budding there is a small outgrowth from the body of the organism. There is a small outgrowth from the body of the organism, and that outgrowth then grows and then detaches from the parent body, है ना, पहले ग्रो करेगा, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है ना। सो see this outgrowth, है ना, this outgrowth is called budding. This grew, है ना, ये क्या हुआ, ये लंबा हुआ साइज में, और लंबा हुआ, और लंबा होने के फाइनली बाद क्या हुआ, पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बडिंग, है ना। तो ये जो बडिंग का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ ईस्ट, this example is of yeast. And what is yeast? याद रखना, yeast is the example of only unicellular fungi, है ना। जितने भी फंजाई होते हैं इस दुनिया में, all the fungi they are multicellular, all the fungi they are multicellular except yeast, है ना। yeast क्या है, yeast is the example of a unicellular fungi, है ना। so this yeast is the only unicellular fungi, ठीक है, ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई। तो यहाँ देख रहे हैं कैसे, यहाँ पे एक सेल है ना, एक सेल से आपका फिर दो सेल बना, है ना, एक सेल से आपका फिर दो सेल बना। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बडिंग दिखती है, दिस पिक्चर आप लोग बहुत लोग जान भी रहे होंगे, व्हाट इज दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ हाइड्रा, है ना, दिस पिक्चर इज ऑफ हाइड्रा, HYDRA। दिस पिक्चर इज ऑफ हाइड्रा, है ना, और हाइड्रा क्या है, दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस इज एन एनिमल टू बी स्पेसिफिक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, है ना। आगे जाएंगे जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तब हम देखेंगे हाइड्रा कहाँ आता है ना। सो व्हाट हैपेंस इज देयर is a growth from its body, that is what is called as budding. This growth grows in size, this grows more in size, yeah? This grows more in size, and after growing
and after growing it detaches from the parent body, है ना, and this is how reproduction occurs. So this is the example of budding. So that is why you saw that budding, है ना, that budding, this budding can happen both in, this budding can happen both in multicellular and unicellular organisms, है ना, this can happen both in multicellular and unicellular organism. This was all about budding. Now let us come on to next mode of reproduction, that is regeneration, है ना. सारा हम लोग asexual mode of reproduction पढ़ रहे हैं. Sexual mode of reproduction essentially एक ही होता है, ठीक है, that was first, है ना, fusion of a male and female gamete, that is your sexual reproduction. Now asexual reproduction का various types होता है कि किसी एक पेरेंट से आपका कैसे ढेर सारे, है ना, किसी एक पेरेंट से कैसे ढेर सारे मेथड से आपका न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है. सो नेक्स्ट मेथड इज योर रीजनरेशन, है ना. प्लीज नंबरिंग देख लेना क्या करें, मेरे को ध्यान नहीं है. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. नेक्स्ट इज रीजनरेशन, है ना. सो व्हाट हैपेंस इन रीजनरेशन, दो चीज़ आप देखिएगा ना, दो चीज़ मैं आपको साइड बाय साइड पढ़ाऊंगी. वन इज रीजनरेशन and the other one is fragmentation, and the other one is fragmentation, and the other one is fragmentation, ठीक है ना. what is the difference between regeneration and fragmentation? देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना. please look at this diagram. Please look at this diagram. In this diagram, what is happening? There is an organism, and this organism, this is dividing into two, है ना, and it is generating new organisms. And what is happening in fragmentation? In fragmentation also, there is one complete organism. This organism is getting fragmented into various pieces, and those pieces are giving rise to new organism. So what is the difference between, you know, regeneration and fragmentation? There is one very big difference, that is regeneration बोलता है. regeneration कब होता है? regeneration happens when by chance, है ना, याद रखना, this is a very important thing. regeneration कब होता है? when by chance, है ना, by chance the organism gets cut into two. The organism gets cut into two. By chance the organism gets cut into two, है ना. तो मान लेते हैं there is an organism. What is the most common example of regeneration? That is your planaria, है ना. planaria को हम और क्या बोलते हैं? planaria is also called as flatworm. planaria is also called as flatworm, ठीक है. तो ये flatworm क्या होता है? बाई चांस इट गेट कट, है ना. तो यहाँ पे जो कट है आप ध्यान रखिएगा, दिस इज बाई चांस. बाई चांस अगर कट हो गया, है ना, तो क्या होगा? जो फ्रैगमेंट्स में टूटा, दोज फ्रैगमेंट्स विल नाउ गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस इज व्हाट इज रीजनरेशन, है ना. रीजनरेशन मतलब क्या? दोबारा से बनाना. नाउ दिस रीजनरेशन इन प्लैनेरिया, दिस रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रू रीजनरेशन. This regeneration is a type of true regeneration, है ना. What is the meaning of true regeneration? Now let us look on to types of regeneration, है ना. Let us look into the types of regeneration. तो जो आपका regeneration होता है, this can be of two types, है ना. this can be of two types. एक हो सकता है ट्रू रीजनरेशन और दूसरा हो सकता है स्यूडो रीजनरेशन, है ना. एक हो सकता है ट्रू रीजनरेशन एंड दूसरा हो सकता है स्यूडो रीजनरेशन. ट्रू रीजनरेशन में हमने क्या देखा? ट्रू रीजनरेशन, व्हेन वी विल से दैट इट इज ट्रू रीजनरेशन, वी विल से इट इज ट्रू रीजनरेशन व्हेन रिप्रोडक्शन हैज अकर्ड. When reproduction has occurred, है ना. ट्रू रीजनरेशन कब बोलेंगे? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सम बॉडी पार्ट. बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सम बॉडी पार्ट, दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, है ना, विच वॉज लॉस्ट, दैट इज रीजनरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजनरेशन अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, है ना. देयर इज रिप्रोडक्शन, वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स टू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रू रीजनरेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो रीजनरेशन? स्यूडो मतलब समझते हैं? स्यूडो मीन्स फॉल्स,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? स्यूडो मीन्स एक्सक्यूज मी, स्यूडो मीन्स फॉल्स, है ना, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। फॉल्स मतलब आप देखें कभी छिपकली को, है ना, छिपकली कई बार देखोगे उसका पूंछ कट जाता है, वो पूंछ छोड़ के चली जाती है और कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस छिपकली का पूंछ दोबारा आ जाता है ना। व्हाट इज दिस? देयर वाज द लॉस ऑफ अ बॉडी पार्ट। व्हाट इज द बॉडी पार्ट ऑफ दैट छिपकली? दैट इज योर टेल। द टेल गॉट लॉस्ट, है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड द टेल ग्रू बैक। क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ? यहाँ रीजनरेशन तो हुआ। अ लॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन? रीजनरेशन मीन्स रीजनरेटिंग अ बॉडी पार्ट विच इज लॉस्ट, है ना। यहाँ जो टेल लॉस हुआ आपका, ये टेल तो वापस से आ गया, तो क्या यहाँ पे रीजनरेशन हुआ? यस, रीजनरेशन हैपेंड, बट दिस रीजनरेशन है ट्रू रीजनरेशन। क्या उस पूंछ से भी छिपकली बनी? छिपकली का तो पूंछ आया, बट क्या उस पूंछ से छिपकली बनी? पूंछ से छिपकली नहीं बनी। सो दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन जहाँ पे रिप्रोडक्शन इज नॉट अकरिंग, वो जो छिपकली थी वो बस अपना पूंछ बना ली, पूंछ से नई छिपकली नहीं बनी। पूंछ से नई छिपकली बनती तो दैट वुड हैव बीन अ ट्रू रीजनरेशन, बिकॉज एक छिपकली से फिर दो बन जाती, बट दिस डिड नॉट हैपन। देयर वाज जस्ट रीजनरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्यूडो रीजनरेशन, है ना। सो व्हाट हैपन्स इन स्यूडो रीजनरेशन? इन स्यूडो रीजनरेशन देयर इज no reproduction, there is no reproduction, है ना। in pseudo regeneration there is no reproduction, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन हम प्लेनेरिया में यहाँ देख रहे हैं, दिस इज एसेंशियली अ टाइप ऑफ ट्रू रीजनरेशन, है ना, दिस इज एसेंशियली अ टाइप ऑफ ट्रू रीजनरेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? आई टोल्ड यू दैट, प्लीज़ ध्यान देना, रीजनरेशन क्या था? दैट वॉज बाई चांस, बट वॉट हैपन्स इन फ्रैगमेंटेशन? इन फ्रैगमेंटेशन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स, है ना। ये ऑर्गेनिज्म जैसे ही बड़ा होगा, ये अपने आप ही कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा, और जितना टुकड़ा होगा दे विल ऑल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डिफरेंस क्या हुआ आपका बाबू रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन के बीच? इन रीजनरेशन द ऑर्गेनिज्म गेट्स कट बाई चांस, तो ऑब्वियसली बाई चांस होता है, तो उसमें कोई और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कटने के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, और भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बट रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ कट बॉडी पार्ट्स। And what happens in fragmentation? An organism, it grows in complete length, and after when it attains its maturity, it divides into various fragments, and then these fragments they grow into new organism, है ना। These fragments they grow into new organism, है ना। ये सारे के सारे क्या करेंगे? आपका नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटेशन? बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, 3 दिया ना। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 4, देखो जो रिप्रोडक्शन में हेडिंग आपका दिया है उसमें लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th लाइन नंबर पे दिया है ना। फंजाई कैन ऑल्सो अगेन रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, है ना। फंजाई फिर से फ्रैगमेंटेशन रिप्रोड्यूस करते। सबसे कॉमन मेथड क्या था फंजाई में? दैट वाज योर स्पोर फॉर्मेशन। उसके अलावा फंजाई, है ना, देखो फंजाई है ना, ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी या फिलामेंटस एल्गी है। दिस इज द स्पाइरोगायरा, है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन या फिलामेंटस एल्गी। एंड व्हाट इज द फाइनल एग्जाम्पल? दैट इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। नाउ व्हाट आर मॉसेस? मॉसेस आर अ टाइप ऑफ प्लांट्स, और ये प्रोटोनीमा क्या होता है? जब हम आगे जा करके प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब देन वी विल नो दैट व्हाट इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। तो अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर दैट द थर्ड एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉर फ्रैगमेंटेशन इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच फॉर एनसीईआरटी? बिकॉज यही एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं आता है ना। तो याद रखना, प्लीज़ गो एंड स्टडी योर एनसीईआरटी एंड इट शुड बी बाय हार्ट, है ना। जैसे हमने पढ़ा है, आप एक बार जाके रीडिंग डालिएगा, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो द फाइनल एग्जाम्पल इज प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, विद दिस वी एंड द लेक्चर ऑफ टुडे, वी एंड टुडेज लेक्चर, एंड इसके आगे जो 1-2 एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बचाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी व्हाट आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना, और हम ये भी देखेंगे कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। प्लीज़ गो होम, है ना, गो होम क्या
लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के बाद आप ज़रूर सोचिएगा, कैन रिप्रोडक्शन बी रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट, है ना। तो इतना चीज़ के साथ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। क्या क्या डिफाइनिंग फीचर होगा वो नेक्स्ट डे में देखेंगे, एंड आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।